नमस्कार न्यूज टुडे इंडिया আপনাদের স্বাগত। আমি জব্বার আলী, আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার সহপ্রতিনিধি রাজ শাহানি এবং ক্যামেরায় রয়েছেন শ্রীকান্ত দাস। আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের যে পেট্রোল পাম্প এলাকা রয়েছে সেই পেট্রোল পাম্পে। আজকে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার এবং সেই সঙ্গে কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিন্তু পেট্রোলের দাম 100 ক্রস করলো, সেঞ্চুরি ক্রস করলো। সেই বিষয়টা কিন্তু আছে উত্তর দিনাজপুর জেলাতে আজকে 100 সেঞ্চুরি ক্রস করার বিষয়, এই বিষয়ে কিন্তু আমাদের আজকের প্রতিবেদন। আমরা এই মুহূর্তে পেট্রোল পাম্পে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেখানে আপনারা দেখতে পারবেন যে পেট্রোলের দাম কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি প্রিমিয়াম, সেটা কিন্তু 105 টাকা সেই জায়গায় পৌঁছে গেছে। এই চিত্রটা হচ্ছে আপনারা সরাসরি নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে দেখতে পাচ্ছেন। এবং না, তার পাশাপাশি যেটা আমরা বলবো যে নর্মাল যেটা পেট্রোল রয়েছে তার দাম কিন্তু 100 টাকা এবং 6 পয়সা হয়ে গেছে। সেই চিত্রটা হচ্ছে আপনারা সরাসরি দেখতে পাবেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রিমিয়াম পেট্রোলের দাম হচ্ছে 105 টাকা এবং সেই সঙ্গে হচ্ছে যেটা নর্মাল পেট্রোল সেটা কিন্তু চলে গেছে 100.06, অর্থাৎ 100 টাকা ক্রস করে গেছে। আর সেখানে হচ্ছে যেটা এক্সট্রা প্রিমিয়াম পেট্রোল রয়েছে অর্থাৎ সুপার ফাইন পেট্রোল, সেটা কিন্তু 104 টাকা 15 পয়সাতেই চলে গেছে। এই বিষয়টা দেখাবো। পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে যারা পেট্রোল নিতে আসছেন তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব। তার পাশাপাশি যেটা ডিজেল রয়েছে সেই ডিজেলও কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ডিজেল চলে গেছে 92 টাকা 47 পয়সাতে। গোটা বাংলাতে কিন্তু সেই পেট্রোলের দাম একদম গগনচুম্বী হওয়ার পাশাপাশি আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ডিজেল, অর্থাৎ যেই ডিজেলে হচ্ছে অসংখ্য গাড়ি চলে, পেট্রোলে তো গাড়ি চলে, ডিজেলে গাড়ি চলে এবং সেই সঙ্গে কৃষকরা যারা রয়েছেন তারা কিন্তু এই হচ্ছে ডিজেলের মাধ্যমে কিন্তু যে জল সরবরাহ জমিতে করে থাকেন পাম্পের সাহায্যে, ডিজেল পাম্পের সাহায্যে, সেই বিষয়টাই কিন্তু ঘটছে। গোটা উত্তর দিনাজপুর জেলাতে কিন্তু আজকে পেট্রোলের দাম 100 ক্রস করে গেছে, সেঞ্চুরি ক্রস করে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীতি, যেই নীতিতে হচ্ছে কেন্দ্রে হচ্ছে তেলের মূল্য, অর্থাৎ হচ্ছে তোমার পেট্রোপণ্যের মূল্য হচ্ছে নির্ধারিত হয়, সেই পেট্রোপণ্যের মূল্য কিন্তু গগনচুম্বী, আকাশ ছোঁয়া। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে কিন্তু গোটা রাজ্য জুড়ে, পশ্চিমবাংলায় কেন গোটা দেশের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। ঠিক যেমনটা আমরা খবর পেয়েছি যে এর আগে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি যে হচ্ছে তৃণমূলের যে শিক্ষক সংগঠন আছে তারা কিন্তু আজকে রায়গঞ্জে তৃণমূলের যে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, সেই শিক্ষক সমিতির নেতা জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ চৌহানের নেতৃত্বে এই মুহূর্তে কিন্তু রায়গঞ্জের একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে হচ্ছে মুখে কালো কাপড় বেঁধে হচ্ছে সেখানে অবস্থান বিক্ষোভ হচ্ছে, ধর্নায় বসেছেন তারা। পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইসলামপুরের উত্তর দিনাজপুর জেলায় যে সাব ডিভিশনাল টাউন, সেখানেও কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন যে এখানে কিন্তু তেলের দাম হচ্ছে 100 টাকা ক্রস করে গেল। আমি আমার সহপ্রতিনিধি রাজকে সেটা একবার দেখানোর কথা বলবো যে এখানে কিন্তু পেট্রোলের দাম 100 টাকা ক্রস করে 100.06 টাকায় এসে পৌঁছেছে। আমরা এখানে স্থানীয় যারা আছে, যারা নিয়মিত গাড়িতে পেট্রোল ভরতে আসেন, তাদের সঙ্গে কিন্তু কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা এখানে এক দাদাকে পেয়ে গেছি, প্রথমত তার নাম জানবো। দাদা, আপনার নাম? মোহাম্মদ ফুরকান। হ্যাঁ, কোথা থেকে আসছেন আপনি? ঠাকুরগাঁও থেকে আসছি। ঠাকুরগাঁও, বিহার থেকে আসছেন। আজকে এখানে বেঙ্গলের পেট্রোল পাম্পে তেল ভরছেন। বিহারে ক টাকা তেলের দাম, এখানে কত হয়েছে? बिहार में 100 টাকা 4 रुपया है। 4 पैसा? जी 4 पैसा है। अच्छा, ये 4 पैसा नहीं भैया, बिहार में है 100 रुपया, 3 टाका 3.5 टाका रुपया है। अच्छा, और बंगाल में थोड़ा कम है, वहाँ से 3 रुपया। अच्छा अच्छा, तो हम सोचे कि बंगाल आए थे ये भरवा लेते हैं, इसलिए यहाँ भरने आए हैं। ये देखिए तेल का कीमत 100 पार कर गया, सेंचुरी पार गया है। क्या कहना है आपका? क्या कहना है, हम लोग का सिर्फ क्या करेंगे, बहुत मुश्किल हो रहा है। हम लोग को गाड़ी हर रोज चलाना पड़ता है भैया, हम लोग हर रोज गाड़ी चलाते हैं। अच्छा अच्छा, तेल इतना महंगाई बढ़ रहा है कि हम लोग जीने का मुश्किल हो जाएगा अब। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? हम तो मोदी सरकार को मानते हैं। मोदी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। जब से ये मोदी सरकार आया है हर चीज़ की महंगाई बढ़ गया है जी। अभी तो पेट्रोल है, जहाँ तक लग रहा है कि 200 रुपये पार हो जाएगा। जब तक मोदी सरकार रहेगा 200 रुपये पार हो जाएगा, ये उम्मीद है। সাধারণ জনগণ তারা কিন্তু কেন্দ্রের নীতিকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে দুষছেন। আমরা এখানে একজন কৃষক বন্ধুকে দেখতে পাচ্ছি, সম্ভবত তিনি এখানে তেল নিতে এসেছেন। কি নাম আপনার? इरफान। কোথায় বাড়ি? বাড়ি দামালবাড়ি। কি নিতে আসেন, পেট্রোল না ডিজেল? डीजल डीजल। কি করবেন সে ডিজেল দিয়ে? अभी डीजल की गाड़ी चलता है। ओ, आपका डीजल गाड़ी चलता है? गाड़ी चलता है। ये जो महंगा बेर का डीजल आपका देखते हैं 92 रुपया से ज्यादा हो गया है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, जब तक मोदी सरकार हुआ है तब तक महंगा ज़्यादा हो रहा है। अच्छा अच्छा, ऐसा लग रहा है? हाँ, ऐसा ही लग रहा है। क्या करेंगे, अभी गाड़ी चलाने छोड़ देना होगा। इतना महंगाई से क्या करेंगे? ये 200 रुपए का भी तेल है 200 रुपया का तेल अभी ड्राम में भरा हुआ है। सुबह से काम कर रहा है, ऊपर से गाड़ी भी ऊपर से भी हमारा। क्या करेंगे? আমরা আম জনতার সঙ্গে কথা বলে নেব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পেট্রোল পাম্পের সেই চিত্র, যেখানে কিন্তু আম জনতা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন গাড়ির চালক তারা কিন্তু আপনারা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি এখানে তেল ভরতে এসেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এটি বেঙ্গল নাম্বারের গাড়ি, একজন ড্রাইভার এখানে ডিজেল ভরতে এসেছেন। গাড়িতে ডিজেল ভরবেন তো দাদা? কি নাম আপনার?
ये मुंतजिर आलम है। अच्छा, बोल रहे हैं यहाँ आज डीजल का कीमत 92 रुपये 47 पैसा है, क्या कहना है आपको? सर किसान लोग और बाकी जितना गाड़ी वाला है सब लोग परेशान है इस तेल को लेके। इतना जी। तेल का दाम ज़्यादा बढ़ गया है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया है। ये आप बड़ी गाड़ी मुश्किल से चलाते हैं, अपने अपने गाड़ी है या किराए का? जी प्राइवेट गाड़ी है। प्राइवेट गाड़ी है। जी सर, दिक्कत हो रहा है आपको? बहुत दिक्कत हो रहा है सर। আমরা কথা বলছিলাম এতক্ষণ ধরে একজন সাধারণ ড্রাইভার যিনি এখান থেকে কিন্তু গাড়িতে ডিজেল ভরতে এসেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি আরো অনেকে আছেন, আম জনতা থেকে শুরু করে এখানে সাধারণ যুবকরাও আছে। একটি ছোট্ট ভাইকে পেয়েছি আমরা। কি নাম তোমার? कुर्बान, কোথায় বাড়ি? दिल्ली। यहाँ पे रहता हूँ ठाकुरगंज में। और ठाकुर में रहते हैं। हाँ। तेल भरने हैं, तेल का कीमत 100 पार गया, क्या कहना है आपको? अब क्या कहूँगा, मैं ज़्यादा बाइक तो मैं चलाता नहीं, जी, अब कम ही बाइक चलाता हूँ। अच्छा, कम ही चलाते हैं। हाँ, इसलिए तो आज ज़्यादा तेल भरना है, दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, दाम परेशानी तो होगा। हाँ, दिन परेशानी में हो रहा है। हाँ। अब 50-50 करके भरना पड़ता है तेल, 50-50 50-50 करके। ঠিক ঠিক ঠিক। আমরা তার সঙ্গে কথা বলছিলাম এক ছোট্ট ভাইয়ের সঙ্গে, সে কিন্তু বাইকে তেল ভরতে এসেছিল। আমরা কিন্তু আমার সহপ্রতিনিধি রাজ সাহানি আছে, তিনি কিন্তু এই গোটা বিষয়টা হিন্দিতে আপনাদের তুলে ধরার চেষ্টা করবেন। রাज, क्या स्थिति है आज जो आप देख रहे हैं कि पेट्रोल का कीमत अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग और साथ ही साथ कलकत्ता का खबर था, आज यहाँ देख रहे हैं कि ये यहाँ उत्तर दिनाजपुर में भी तेल का कीमत 100 पार कर चुका है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जबरदस्त। हिंदी में एक गाना है किससे की सैया बहुत ही कमात है, महंगाई डाइन मार जाता है। और यही जो स्लोगन है आज पूरा भारतवर्ष है, जो महंगाई के कारण पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पश्चिम बंगाल और उसका असर इस्लामपुर में भी दिख रहा है। पूरे भारतवर्ष के विभिन्न जगहों पर पहले ही 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल का दाम बढ़ गया था, लेकिन आज पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर या फिर उत्तर दिनाजपुर ज़िले में पहली बार जो पेट्रोल का दाम है वह 100 रुपया क्रॉस किया है। और यह जो है महंगाई की मार बार बार जो बता रहे थे, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, इसके साथ साथ सरसों तेल बोलिए, दाल बोलिए, डीजल बोलिए, जो नित्य प्रयोजनीय जिनिस सामान है, जो साधारण व्यक्तियों को, आम आदमी को हर दिन ज़रूरत पड़ती है, उन सभी चीज़ों का जो दाम है काफ़ी बढ़ चुका है, जिसके कारण साधारण जो आम जनता है वो काफ़ी परेशान है। लेकिन सबसे बड़ा असर जो डाल रहा है साधारण जो जनगण है, आम जो जनता है, उसके ऊपर जो गैस का जो दाम है वो वृद्धि होने के कारण, साथ ही पेट्रोल और डीजल, यह जो दो चीज़ है जिसका असर पूरे भारतवर्ष पर इस कारण पड़ता है क्योंकि पेट्रोल और डीजल से ही पूरे भारतवर्ष का कृषि बोलिए या फिर ट्रांसपोर्ट बोलिए, ये दो जो प्रमुख माध्यम है यह डिपेंडेंट रहता है। और पेट्रोल या डीजल का दाम जब बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट का भी मूल्य बढ़ता है। आप सभी जानते हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल में बस जो एसोसिएशन है, प्राइवेट बस एसोसिएशन, उनकी हड़ताल चल रही है। तेल का यह जो दाम बढ़ा है, ग्राफ बढ़ा है, उसके कारण जो पहले का जो भाड़ा था बस का भाड़ा, उसको लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में जो है अभी आंदोलन चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है। प्राइवेट बसेस जो हैं वह नहीं चलाई जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पश्चिम बंगाल में पेट्रोल और डीजल के जो मूल्य में जो वृद्धि हुई है, इसका असर पूरी तरह से आम जनता पर पड़ रहा है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर के पेट्रोल पंप में और यहाँ पर आए हैं आम जनता की राय लेने के लिए कि पहली बार जो है इस्लामपुर के पेट्रोल पंप में या फिर उत्तर दिनाजपुर जिले के पेट्रोल पंप में पेट्रोल का दाम 100 रुपये को क्रॉस किया है। इसमें आम जनता की क्या राय है, क्या कहना है, उन लोग का सारे विषयों को जानने की कोशिश करेंगे। पहले आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अनवर हुसैन है। कहाँ है आपका? मेरा घर तो इस्लामपुरी है। इससे पहले भी पेट्रोल भरते थे आप? हाँ, इससे कभी हम 100 रुपये 1 लीटर पेट्रोल का दाम दिए हैं? नहीं, कभी नहीं दिए हैं। क्या लगता है इससे कितना असर पड़ेगा आम जनता के ऊपर? आम जनता को तो बहुत असर पड़ेगा, इसलिए कि पहले इसकी कीमत जो है समझिए कि 73 के लगभग था, तो अभी जो है समझिए कि 30% बढ़ चुका है। तो आम जनता को इससे जो है परेशानी होती है, समझे ना। तो कुछ कम होना चाहिए, हम लोग को बहुत परेशानी होती है और हर चीज़ की कीमत जो है बढ़ती जा रही है। तो ये समझिए कि क्या कहते हैं कि जनता के खिलाफ है, थोड़ा इससे जो है बचना ज़रूरी है, समझे ना। हमारी यही सवाल है। बोले ये पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस, इसका जो कीमत बढ़ रहा है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, किसको सोच रहे हैं कि ये जिम्मेदार है? नहीं, ये तो समझिए कि सरकार को सोचना चाहिए कि आम जनता जो चल रहा है, तो समझिए कि हाँ मतलब किसी ना किसी व्यवसाय के कारण, तो अब व्यवसाय तो है नहीं, अभी लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है, तो आदमी कैसे कमाई करेगा और कैसे जो है इसका यह क्या कहते हैं कि इसका जो है जो चल रहा है मतलब काम वगैरह, तो इससे आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे। तो इससे यह है कि हम लोगों को जो है थोड़ा कीमत हर चीज़ की जो है कम होना चाहिए, ताकि हम लोगों को फ़ायदा हो सके और हम लोग जो है क्या कहते हैं देश की खिदमत कर सकें।
हम लोग बात कर रहे थे आम जनता से। आम जनता का साफ साफ कहना है कि राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या फिर जो भी हैं इसके आधिकारिक या फिर जो भी हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि यह जो नित्य प्रयोजनीय चीज़ है जो हर दिन आदमियों को ज़रूरत पड़ता है, गैस का रसोई हो या फिर पेट्रोल हो या डीजल हो, इन सब चीज़ों में जल्द से जल्द अगर मूल्य वृद्धि में यदि कंट्रोल नहीं किया जाए तो साधारण आम जनता जो है उसके जो पॉकेट पे काफ़ी असर पड़ रहा है, साथ ही साथ आम जनता का जो रसोई घर है उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। पहली बार इस्लामपुर के पेट्रोल पंप में या फिर उत्तर दिनाजपुर जिले के पेट्रोल पंप में पेट्रोल का दाम जो है 100 रुपये के पार हुआ है। मैं एक बार फिर से दिखाने के लिए अनुरोध करूंगा मेरे सहप्रतिनिधि को। यहाँ पर देख रहे हैं 100.06 1 लीटर पेट्रोल अगर आप भरते हैं तो उसका मूल्य आपको 100 रुपये 100.06 रुपये आपको देना पड़ेगा। साथ ही एक्स्ट्रा प्रीमियम अगर पेट्रोल भरते हैं आप तो 104.15। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे यहाँ पर देख रहे हैं जो पेट्रोल लेने के लिए आ रहे हैं आम जनता, लेकिन उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 100.06 है पेट्रोल का दाम और साथ ही साथ डीजल का जो दाम हम लोगों ने बताया था 92.47 प्रति लीटर चल रहा है। यहाँ पर पेट्रोल भरने के लिए साधारण आम जनता आ रहे हैं, लेकिन जब हम उनसे बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि जल्द से जल्द अगर पेट्रोल या डीजल का जो मूल्य है उस पर अगर कंट्रोल ना किया जाएगा तो इसका जो है असर आम जनता के ऊपर पड़ रहा है। बोल रहे हैं भाई साहब, पहली बार जो है पेट्रोल का दाम पर लीटर 100 रुपया है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? हमारी राय ये है कि अगर इसी तरह से रेट बढ़ता हुआ रहा तो फिर लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस विषय में सरकार को कुछ कदम उठानी चाहिए महंगाई कम करने के लिए, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन की वजह से ऐसे ही जनता परेशान है। हाँ, कोई लोग बेरोज़गार हैं, धंधा लोगों का बंद है, फिर उसके ऊपर इस तरह से महंगाई, लोग किस तरह से अपनी ज़रूरत को पूरी करेंगे। इसलिए मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सरकार को इसके बारे में सोचनी चाहिए, जनता के बारे में सोचनी चाहिए, महंगाई के बारे में सोचनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम हशमत रज़ा है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। हम लोग बात कर रहे थे, एक बार फिर से आप लोगों को बता दें, यूपीए की जब सरकार थी तब हम लोगों ने देखा था कि स्मृति ईरानी हो, साथ ही साथ जो अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एकाधिक केंद्र सरकार का जो अभी चल रहा है उस कैबिनेट मिनिस्टर में एकाधिक नेतृत्व ऐसा है, नितिन गडकरी हो या फिर स्मृति ईरानी हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह, इन लोगों ने जब यूपीए की गवर्नमेंट चल रही थी 2014 साल से पहले, तब जो पेट्रोल का दाम 60 रुपये या फिर गैस का दाम 350 रुपये था, तो उस वक्त जो है स्मृति ईरानी बोलिए, नितिन गडकरी बोलिए, एकाधिक जो नेतृत्व हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों ने संसद भवन के सामने गैस सिलेंडर लेकर, मोटरसाइकिल लेकर, जो बैलगाड़ी है उसको लेकर संसद भवन के सामने एकाधिक मूवमेंट किया था। इस विषय में हम विस्तारित रूप से जानना चाहेंगे जब्बारदा से। जब्बारदा, जब यूपीए की सरकार थी तब जो स्मृति ईरानी बोलिए, नितिन गडकरी बोलिए या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतृत्व हैं वो जो है संसद भवन के सामने एकाधिक मूवमेंट किए थे गैस सिलेंडर लेकर, बैलगाड़ी लेकर, लेकिन अभी जो है पेट्रोल का दाम 100 पार हो चुका है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सानी जी, ठीक कहें आप। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार का जो नीति होता है, खास करके पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के साथ साथ आम जो सामग्री, एसेंशियल जो कमोडिटीज होता है, इसके ऊपर में सरकारी कोई कंट्रोल है ही नहीं, ऐसा आम जनताओं का कहना और मानना है। और जैसा कि आप कहें राजधानी जी कि 2014 से पहले जब यूपीए की सरकार थी तो सिर्फ महज कीमत 60 रुपये पेट्रोल का था और वहाँ डीजल जो था वो 40 रुपये के नीचे, और साथ ही साथ जो रसोई गैस उसका 350 का कीमत था। और तभी देखा गया था कि इन सभी सामान को उस वक्त के उसको महंगाई मान के, जैसे कि देखा गया कि गाड़ी जला करके जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के तरफ से विक्षोभ प्रदर्शन किया गया, आंदोलन किया गया, मुहिम छेड़ा गया। ऐसा कहा गया कि ये बहुत ही आम जनता का पॉकेट में बहुत इसका असर पड़ सकता है। लेकिन मौजूदा हाल में जो परिस्थिति है वो भयानक परिस्थिति है। जैसे कि कल आप सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़पेपर, सभी जगह में देखेंगे कि जबकि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है, उस क्रूड ऑयल का कीमत काफ़ी कम होने के नाते भी देखा जा रहा है कि ये इस लॉकडाउन या जिस तरह से कोरोना का जो सेकेंड वेव है, इस महामारी के बाद से ही सभी सामान के साथ साथ पेट्रोल और डीजल, इस सभी सामान का जो मूल्य है, कीमत है, वो ये उसका ग्राफ है जो ऊंचे के तरफ जा रहा है। और जैसा आपको अपना नज़ारा दिखाएं कि पेट्रोल का जो कीमत है वो उत्तर दिनाजपुर जिला में भी आज 100 पार कर चुका है, और जो डीजल है
वो 92.47 है। यहाँ एक आम आदमी से हम बात कर लेंगे। भाई साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम तौहीद है। कहाँ के रहने वाले हैं? आगुरेसिया, आगुरेसिया के, गुंजरिया, बंगाल के रहने वाले हैं। आज जो पेट्रोल भरने आए हैं, पेट्रोल का कीमत 100 से ऊपर हो गया है। क्या कहना है आपको, क्या राय है आपका इसके ऊपर में? आप क्या करेंगे भाई, कुछ किसके वजह से हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? यह तो समझ जाओ जो मोदी बीजेपी की वजह से। बीजेपी की वजह से? बीजेपी की वजह से। क्यों, क्या ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है? अब उतना तो मालूम नहीं है मुझे। नहीं मालूम है, इनको मालूम नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि केंद्रीय की जो सरकार है ये इसके लिए जिम्मेदार है। हम पीछे देखते हैं एक जो जवान भाई है, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुल्तान है। सुल्तान भाई, ये जो आप तेल भरने आए हैं, कितने का तेल भर रहे हैं? 210 का तेल भर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जब तेल भरते पहले थे तो- 50 रुपए में देता था, अब ये 200 में तेल भर रहे हैं, तब भी हमारा टंकी बिल्कुल ऊपर को नहीं आता है। और पहले 80 रुपए लीटर था या 60 रुपए लीटर था, पहले 55-45 में 1 लीटर तेल आता था, अब 110 रुपए में लीटर आता है। तो ये इस सब का जो जिम्मेवार है ना, और जो लोग मोदी भक्त है ना, भोसड़ी वाले जो भी है, काली नहीं देते, जो भी मोदी भक्त है, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, तुम लोग सिर्फ राम के भजन गाते रहो और सड़क पर मरते रहो, समझे भाई लोग। मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हें कुछ दिखने को मिलता है, देखो और समझो कि हो क्या रहा है देश में। 55 रुपये बहुत, पहले 55 था, अब 100 रुपये, कितना अंतर आ गया यहाँ पे। एक आम इंसान को 200 रुपये कमाने के लिए कम से कम उसको काफ़ी पूरे दिन खेती बाड़ी में मेहनत करना पड़ता है। अब उस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है। पहले 50 में काम होता था, अब 200 रुपये भरवाने के लिए 1 लीटर तेल मिलता है हमारे को। तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आता है। देख रहे हैं आम जनता आवाम का जो कहना है उसको हम दिखाने का कोशिश किए। यहाँ आप देख सकते हैं कि पेट्रोल, डीजल, सभी सामान, ये इसका असर तो जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी के ऊपर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जब किसी एक स्टेट में या किसी एक कंट्री में जब क्रूड ऑयल के साथ साथ अगर कोई पेट्रोल और डीजल ये सब का दाम जब बढ़ता है तो उसका असर कृषि के ऊपर में भी, और साथ ही साथ कृषि रिलेटेड जो प्रोडक्ट है या फिर ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े है जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर में पड़ता है। और यही नज़र हमको देखने को मिल रहा है। हम देखें कि काफ़ी तादाद में यहाँ लोग आए हैं। हम देखते हैं कि एक लेडी भी आए हैं यहाँ, उनसे आप बात कर लेंगे। वो तेल भरने आए हैं यहाँ, क्या काम करते हैं वो, और यहाँ स्कूटी लेकर के तेल भरने आए हैं, उससे हम बात करेंगे। की काज करो तुम्हें? আমি ইংলিশ মিডিয়াম পড়াই। আচ্ছা, স্কুলের শিক্ষিকা। এই যে তেলের দাম আজকে 100 টাকা ক্রস করে গেল উত্তর দিনাজপুরে, কি বলবে তুমি? আমি আর কি অসুবিধা হচ্ছে? হ্যাঁ, অনেক অসুবিধা হচ্ছে। আমি মানে 10 কিলোমিটার দূরে পড়াইতে যাই। 10 কিলোমিটার দূরে, আর থেকে 20 কিলোমিটার। হ্যাঁ। আগে কত টাকা তেল লাগতো? আগে 1 লিটারের মতো। 1 লিটার মতো লাগতো। এখন কত লাগে? এখন বেশি লাগে। বেশি লাগে। আগে 1 লিটার তেলের দাম 60 টাকা 50 টাকা ছিল, এখন 100 টাকা হয়েছে। অসুবিধা হচ্ছে না? অনেক অসুবিধা হচ্ছে। ঠিক। হ্যাঁ। এই যে তোমার যে মাইনে পাও সেই মাইনেতে পোষাবে এখন এই তেল ভরলে? না না, ওটা অসুবিধা অনেক হচ্ছে এখন। আগে মানে পোষা যেত, এখন পোষাচ্ছে না। हम एक लेडी से बात किए जो कि एक प्राइवेट स्कूल के शिक्षिका है। यहाँ देखते हैं कुछ और भी जनता है जिनका राय हम लेने का कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपका नाम बताइए। সুব্রত বিশ্বাস। আচ্ছা, বলছি তাহলে বাংলায় বলতে হবে। বলছি এই যে আজকে তেলের দাম 100 টাকা ক্রস করে গেল আমাদের উত্তর দিনাজপুর জেলাতে, কি বক্তব্য আপনার? কি বলবো এখন, মানে এটা খুব একটা দুঃখজনক বিষয়, কারণ এখন এই করোনার টাইম, কারো কোনো ইনকাম সোর্স নেই, যার কারণে এটা আর কি খুব ওভার হয়ে গেছে আমাদের জন্য। আচ্ছা, আমরা মানে বাইক নিয়ে যে কোথাও ঘোরাঘুরি করব সেটা মানে খুব কষ্টকর। এমনি ব্যক্তিগতভাবে আপনি কোন প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত? আমি সাউন্ডের ব্যবসা করি, কিন্তু এখন তো আমাদের টোটালি কাজ অফ আছে। আচ্ছা, যে সময় আপনি সাউন্ডের কাজ করেন নিশ্চয়ই আপনাকে বাইক নিয়ে ছোটাছুটি করতে হয়? হ্যাঁ, বাইক নিয়ে, গাড়ি নিয়ে ছোটাছুটি করতে হয়, মানে প্রচুর চাপ এখন এই তেলের জন্য। মানে এইদিকে আমাদের কাজকর্মের দিকেও মানে টাকা দিতে চাচ্ছে না লোক, এই কারণেই বলছে যে এখন লকডাউন, এত টাকা আমরা ভাড়া দিতে পারবো না। এই বলছি সাউন্ডের ব্যবসা করেন, জেনারেটর চলে, ডিজেলের দাম বেড়েছে। হ্যাঁ, ডিজেলের টাকা, কি বলবেন? কি বলবো এখন, এটা করার এখন আমার আর কিচ্ছু নেই, কিন্তু আমার খুবই কষ্ট লাগছে। কারা দায়ী এর জন্য মনে করছেন? এর জন্য সরকার দায়ী। सरकार दायी माने? हाँ अवश्य। हम देखते हैं आम आवाम जो कह रहे हैं सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम देखेंगे, यहाँ बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ कतार में आके तेल भरने आते हैं इस तरह से पेट्रोल पंप में, लेकिन तेल का कीमत बढ़ने की वजह से सभी तरह के जो सामान है उसके ऊपर में असर पड़ेगा। हमारे सह प्रतिनिधि राज शाहनी को एक बार कहेंगे कि ये जो आज उत्तर दिनाजपुर जिला में जो डीजल और पेट्रोल का दोनों का कीमत बढ़ गया है उसके ऊपर में उसका क्या टिप्पणियाँ क्या कहेंगे, और साथ ही साथ यहाँ का जो पेट्रोल व्यवसायी लोग हैं उनका क्या कहना है, उनसे भी हम बात कर लेंगे। राज,
धन्यवाद जबरदस्त। जैसा कि बता रहे थे कुछ दिन पहले से ही जो है पेट्रोल का दाम लगातार पिछले 2 महीने से जो है लगभग हर दिन कुछ पैसे करके इसमें वृद्धि हो रही थी। किसी दिन 30 पैसे, किसी दिन 40 पैसे, किसी दिन 20 पैसे, हर दिन जो है लगातार। पिछली बार हम लोगों ने देखा था लगातार 21 दिन तक हर दिन जो है पेट्रोल की जो मूल्य वृद्धि है इसमें हर दिन ये जो थोड़ी थोड़ी करके वृद्धि हो रही थी, और इस बार भी वैसा ही असर दिख रहा है। हर दिन जो है कुछ पैसों की वृद्धि हो रही है। कल हम लोगों ने देखा था जो अलीपुरद्वार और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल में यह 2 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पहली बार पेट्रोल का जो मूल्य है वह 100 रुपये के पार हुआ था। और दूसरी दिन है और आज के दिन ही उत्तर दिनाजपुर जिले में भी इसका असर दिख रहा है। उत्तर दिनाजपुर जिले में पहली बार जो है पेट्रोल का मूल्य 100 रुपये क्रॉस किया है। साथ ही साथ बता दें यह जो स्थिति है, यह जो दाम है पेट्रोल और डीजल का, सिर्फ उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर या फिर अलीपुरद्वार या फिर दार्जिलिंग या फिर कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में जो है पेट्रोल और डीजल की जो मूल्य वृद्धि है इसमें काफ़ी चढ़ाव दिख रहा है। काफ़ी मात्रा में जो है डे बाय डे इसमें वृद्धि हो रही है और इसका असर जो है आम जनता के पॉकेट में पड़ रहा है। आम जनता का जो रसोई घर है उस पर पड़ रहा है। आपको सीधी तरह से बता दें सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं, इसके साथ साथ जो आम आदमी का सबसे मूल्यवान चीज़ है वह है रसोई घर, जहाँ पे आम आदमी का जो चूल्हा जलता है उस गैस का जो रसोई है उस रसोई में भी जो है लगातार जो मूल्य वृद्धि हो रही है और लगभग 900-1000 रुपये से भी अधिक जो है रसोई गैस का दाम बढ़ चुका है। जो पहले आदमी 400 या 450 रुपये में मिल जाता था। कुछ आदमी से हम लोगों ने बात करने की भी कोशिश की ऑफ द कैमरा। जो रसोई गैस है इसमें भी जो है सब्सिडी जो है बैंक अकाउंट में आता था काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, वह जो है सब्सिडी जो है उसमें भी अभी जो दिख रहा है जो बहुत ही सामान्य मूल्य में लगभग 100 या फिर 80-90 रुपये ही सब्सिडी के रूप में उनके अकाउंट में आ रहा है। यह भी जो सब्सिडी अकाउंट में आ रहा है वो सभी के अकाउंट में नहीं आ रहा है, तो इस बात को लेकर भी जो है आम आदमी काफ़ी नाराज़ है। इस विषय में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो सियोटिया जो सर्विस स्टेशन है इसके जो ऑनर हैं या फिर जो मैनेजर है उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। जो पूरा विषय क्या है, किस कारण से जो है ये डे बाय डे हर दिन जो है पेट्रोल की जो वृद्धि हो रही है, पेट्रोल और डीजल के जो मूल्य है इसमें क्यों वृद्धि हो रही है, इसी विषय को लेकर क्यों वृद्धि हो रही है और क्या कारण है जिसके वजह से रोजाना जो है पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि हो रही है। पहले ही हम लोग आ चुके हैं, हम लोग बात करने की कोशिश करें। आपका नाम? राजेश अग्रवाल। सियोटिया पेट्रोल पंप है ये हाँ, हाँ। पेट्रोल पंप का नाम, इसके आप ऑनर हैं? हाँ हाँ। ये रोजाना जो है हर दिन है पेट्रोल के दाम बढ़ रही है और आज के दिन में जो है मूल्य 100 रुपया क्रॉस कर चुकी है। हाँ, हाँ। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जब तक इसमें यार जीएसटी लगेगा नहीं तब तक ये कंट्रोल में नहीं आ सकता है। जीएसटी लगने से ही रेट थोड़ा गिरेगा, बाकी कोई उपाय नहीं है। क्या कारण है जो रोजाना कारण तो हम क्या बताएं, गवर्नमेंट का ही कोई कारण है। पेंडेमिक चल रहा है, वैक्सीन वगैरह का हो रहा होगा इसीलिए है, और तो हम लोग को बोलना मुश्किल है। हम लोग को तो उल्टा लॉस है दाम बढ़ने से। क्या लग रहा है किस तरह से यह जो मूल्य वृद्धि है रोजाना इसमें किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? बस इसका एकमात्र कारण है जीएसटी लगने से ये भी कंट्रोल हो सकता है। आप लोग और इंटरनेशनल मार्केट पे इसका दाम डिपेंड करता है, तो हम लोग तो उसमें कुछ नहीं, हमको तो जो रेट आता है उसी से बेचना पड़ता है। बोलते हैं भाई साहब अगर दाम बढ़ता है तो आप लोग का नुकसान बताएंगे, वो किस तरह से थोड़ा समझाएं हमारे? वो क्या हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, बिक्री कम हो रहा है, क्योंकि जो आदमी 100 रुपये का तेल भरता था पहले 1.5 लीटर जाता था, अब वो 100 रुपये में 1 लीटर जाता है, तो हमारा सेल कम हो गया। हमारा तो कमीशन फिक्स है, हमारा तो ये लीटर पे परसेंटेज में नहीं है, हमारा फिक्स लीटर पे कमीशन है। हमको क्या फायदा है? अच्छा, तो आप लोग भी एक तरह से ये मूल्य वृद्धि के कारण आप लोग घाटे में चल रहे हैं? घाटा ही है, कोई फायदा नहीं है। ओवरऑल तेल का बिक्री तो कम हो ही रहा है ना। आपको 100 रुपये का तेल पहले भरते थे, आज भी 100 का ही भर रहे हैं। पहले आप 1.5 लीटर तेल लेते थे तो हमको 1.5 लीटर में कमीशन मिलता था, अब आपको 1 लीटर तेल जा रहा था, हमको 1 लीटर में कमीशन मिल रहा है। बस ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे सियोटिया जो पेट्रोल पंप है इस्लामपुर का, यहाँ का जो ऑनर है राजेश अग्रवाल साहब, उनसे बात कर रहे थे। हम लोग वापस पेट्रोल पंप पे अंदर जाना की कोशिश करेंगे और वहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने बात की कि यहाँ के जो ऑनर है क्या कारण हो सकता है जो रोज़ाना यहाँ पे जो है पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि हो, वह भी जो है सही तरह से नहीं बता पा रहे थे कि इसके पीछे ठीक क्या कारण हो सकता है, क्या मजबूरी हो सकती है केंद्र सरकार की जिसके कारण जो है रोज़ाना पेट्रोल और डीजल का जो मूल्य है उसमें काफ़ी वृद्धि हो रही है।
एक बार फिर से बता दें, हम लोग आज इस वक्त आप पहुँचे हैं उत्तर दिनाजपुर ज़िले के जो इस्लामपुर है, इस्लामपुर के जो पेट्रोल पंप है आश्रमपारा में, वहाँ पर। और आज के दिन जो है इस्लामपुर के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर ज़िले में जो पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंपों में जो है पहली बार पेट्रोल का जो दाम है 100 रुपये को छूती हुई। और इसी कारण से आज हम लोग आप लोगों के सामने आए थे एक प्रतिवेदन लेकर और आम जो जनता है उनका राय जानने के लिए हम लोग आए थे, जो उनकी क्या राय है, इस विषय में क्या कहना है, इन सब बातों को आप लोगों के सामने हम लोगों ने रखा। इसी तरह की कोई भी अपडेट हो या फिर कोई भी जानकारी हो, इन सब विषयों को लेकर निरंतर जो है लगातार जो है न्यूज़ टुडे की जो टीम है वह आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेगी। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर, हर अपडेट जानने के लिए आप लोग न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ जुड़े रहिए। मेरे सहप्रतिनिधि श्रीकांतो दास, जब्बार अली के साथ मैं राज साहनी, इस्लामपुर पेट्रोल पंप से।